کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی تباہیاں ہمیشہ بڑے گناہوں سے شروع نہیں ہوتی بلکہ وہ شروع ہوتی ہیں ایک بہت ہی چھوٹے، معمولی اور بظاہر بے ضرر نظر آنے والے معمولی قدم سے؟ ایک نظر جو تھوڑی دیر زیادہ ٹھہر جائے، ایک خواہش جو دل میں خاموشی سے جگہ بنا لے، ایک تجسس جو ہمیں وہاں لے جائے جہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہی ایک چھوٹا سا قدم آہستہ آہستہ ایک ایسی راہ بن جاتا ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں رہتی، اور انسان یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کب اور کیسے اپنی محفوظ حدود سے نکل کر خطرے کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے، ایک لڑکی کی کہانی جو ہزاروں سال سے ایماندار گھرانوں میں بالکل ایک جیسے انداز سے دہرائی جا رہی ہے۔ وہ لڑکی باغی نہیں تھی، وہ بری نہیں تھی، وہ خدا سے دور بھی نہیں تھی، وہ صرف دیکھنا چاہتی تھی، صرف دنیا کو، صرف لوگوں کو، صرف اس زندگی کو جو اس کے اپنے دائرے سے باہر تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر راستہ خوبصورتی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ کچھ راستے خاموشی سے انسان کو اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 34ویں باب میں ملتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دینا کی۔ دینا یعقوب کی بیٹی، ایک ایسے باپ کی بیٹی جسے خدا نے چنا، جسے خدا نے وعدے دیے، جس کے ساتھ خدا خود چلتا تھا۔ وہ ایک ایسے گھر میں پلی بڑھی جہاں خدا کا ذکر ہوتا تھا، جہاں ایمان سکھایا جاتا تھا، جہاں روحانیت کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہر ایماندار گھر میں ایک نہ ایک جنگ ضرور ہوتی ہے۔ یہ جنگ باہر کی نہیں، یہ جنگ اندر کی ہوتی ہے۔ دل کی جنگ، خواہشات کی جنگ، دیکھنے، جاننے اور محسوس کرنے کی جنگ۔ کبھی کبھی ایماندار ماحول میں پلنے والے دل کے اندر بھی ایک خاموش سوال جنم لیتا ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، اور یہی سوال اکثر انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ دینا اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی۔ صرف ایک جملہ، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہے۔ وہ بغاوت نہیں تھی، وہ کوئی نافرمانی کا اعلان نہیں تھا، وہ صرف ایک قدم تھا، تجسس کا، خواہش کا، اور حدود کو تھوڑا سا پار کرنے کا۔ لیکن اکثر زندگی کی سب سے بڑی کہانیاں ایسے ہی چھوٹے جملوں سے شروع ہوتی ہیں۔ دینا نے بھی کوئی بغاوت نہیں کی تھی، اس نے اپنے والد کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا تھا، اس نے خدا سے منہ نہیں موڑا تھا، اس نے صرف اپنی حدود کو عبور کیا تھا۔ ایک ایسا قدم جو بظاہر چھوٹا تھا لیکن روحانی لحاظ سے بہت بڑا۔ وہ اس دائرے سے باہر نکلی جہاں وہ محفوظ تھی، وہ ان لوگوں کے درمیان گئی جہاں اس کی پہچان مختلف تھی، جہاں اس کا ایمان مختلف اور اکیلا تھا۔ وہ ایسے ماحول میں داخل ہوئی جہاں خدا کا خوف نہیں تھا، جہاں شہوت پرستی تھی، جہاں اقتدار مختلف تھی، جہاں کے لوگ اپنے نفس کے غلام تھے، جہاں سوچ مختلف تھی، جہاں ایمان مختلف تھا، اور جن کا خدا مختلف تھا۔ وہ زندہ، سچے اور پاک خدا کو یعنی رب العالمین کو نہیں جانتے تھے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں خطرہ شروع ہوا۔ یاد رکھیں کہ ہر روحانی خطرہ کبھی شور کے ساتھ نہیں آتا، وہ دروازہ توڑ کے اندر نہیں داخل ہوتا، بلکہ وہ خاموشی سے آتا ہے، نرمی سے آتا ہے، بہت دلکش انداز میں آتا ہے۔ کبھی وہ ایک مسکراہٹ کی صورت میں آتا ہے، کبھی ایک نئی دوستی کی شکل میں، کبھی وہ دل میں ایک آواز ڈالتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو قائل کر لیتا ہے کہ میں صرف دیکھ رہی ہوں، میں صرف مل رہی ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی۔ لیکن ہر غلط راستہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے، دوستی کے نام پر، تجسس کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب محفوظ زمین سے نکل کر ایک خطرناک راستے پر قدم رکھ چکا ہے۔ اور پھر وہی
वही हुआ जिसका खतरा हमेशा खामोशी से करीब आता है। वहां उसी अजनबी माहौल में एक शख्स से दीना की मुलाकात हुई। उसका नाम सिकम था, एक ताकतवर खानदान का बेटा, असरो रसूग रखने वाला, लोगों की नजरों में बहुत बड़ा। लेकिन इंसान की असल पहचान उसकी ताकत नहीं होती, उसका किरदार होता है। और सिकम अपनी ख्वाहिशात का गुलाम था। बाइबल मुकद्दस बताती है कि सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। ये अल्फाज सिर्फ एक वाकया बयान नहीं करते, ये एक दिल को चीर देने वाली हकीकत है। ये एक लम्हा था, एक ऐसा लम्हा जिसमें सब कुछ बदल गया। वो लम्हा जिसने एक मासूम दिल को तोड़ दिया, वो लम्हा जिसने एक बेटी की इज्जत को छीन लिया, वो लम्हा जिसने एक खानदान की खुशी को गम में बदल दिया। दीना जो सिर्फ देखने निकली थी, अब खुद एक दर्दनाक कहानी बन चुकी थी। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गुनाह कभी अकेला नहीं आता। ये अपने साथ नताइज, दर्द और तबाही लेकर आता है। उस एक लम्हे ने एक बेटी को तोड़ दिया, एक बाप के दिल को जख्मी कर दिया और भाइयों के दिलों में आग भर दी। और आहिस्ता आहिस्ता ये वाकया एक ऐसे बहरान में बदलने लगा जो सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक पूरे खानदान और एक पूरी कौम को अपनी लपेट में लेने वाला था। और यहाँ से ही ये कहानी एक नए खौफनाक मोड़ में दाखिल होती है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं रहा, ये सिर्फ एक लड़की का दुख नहीं रहा, ये बन गया गुस्सा, इंतकाम और खून रेजी। दीना के भाइयों के दिल गम से नहीं बल्कि गुस्से से भर गए। उनके अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो इंसाफ नहीं बल्कि इंतकाम चाहती थी। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, खामोशी से, चालाकी से, और फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उन्होंने धोखे से हमला किया और एक पूरे शहर के मर्दों को कत्ल कर दिया। एक पूरा शहर जो कल तक आबाद था आज खामोश हो गया। चीखें, खून, तबाही, ये सब सिर्फ एक वाकये के बाद हुआ। एक कदम अपनी हदूद के बाहर और उसके पीछे तबाही की एक लंबी जंजीर। दीना के साथ जो हुआ वो दर्दनाक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। क्योंकि जब इंसान खुदा के रास्ते से हटता है तो वो सिर्फ खुद नहीं गिरता, वो दूसरों को भी गिरा देता है। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि गुनाह कभी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ रद्द अमल, इंतकाम और बर्बादी लेकर आता है। एक लम्हे की लग्जिश कभी कभी नस्लों तक असर छोड़ जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ माजी तक महदूद नहीं रही, ये आज की भी कहानी है। आज भी दुनिया नहीं बदली, इंसान बदल गया, तरीके बदल गए, लेकिन खतरा आज भी वैसा ही है। आज भी हमारे चारों जानिब हवस के गुलाम हजारों सिकम जैसे जिनसी दरिंदे मौजूद हैं, जो उसी जनाकारी की रूह के जकड़े हुए हैं, जिनकी बुनियाद ही शहवत परस्ती पर रखी गई है, जिनके लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना होता है, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़े। उन्हें परवाह नहीं होती, बस उनके चेहरे बदल गए हैं, उनके मजहब बदल गए हैं, उनके अंदाज बदल गए हैं, मगर रूह वही है। आज वो सिर्फ मैदानों में नहीं, सोशल मीडिया पर भी मिलते हैं। आज वो सिर्फ हमारे घरों के दरवाजों से नहीं बल्कि चैट के जरिए भी हमारी जिंदगी में दाखिल होते हैं। आज वो ज्यादातर जबरदस्ती नहीं करते बल्कि नहायत मक्कारी से मोहब्बत के नाम पर करीब आते हैं। मीठे अल्फाज, झूठी तारीफें, खाली वादे और एक मासूम दिल आहिस्ता आहिस्ता उन बातों में यकीन करने लगता है। यही वो जगह है जहां आज की कोई दीना खड़ी होती है, कोई मारिया शहबाज खड़ी होती है। एक तरफ खुदा की राह, पाकीज़गी, महफूज हदूद, और दूसरी तरफ दुनिया की चमक, हवस की ताकत, आर्जी खुशी और एक नामालूम अंजाम। खुदा का कलाम साफ कहता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। ये अल्फाज सख्त लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे खुदा की मर्जी छुपी है। ये हुक्म किसी को महदूद करने के लिए नहीं, ये हुक्म तो बचाने के लिए है, क्योंकि खुदा जानता है वो रिश्ते जो उसके बगैर बनते हैं आखिरकार टूट जाते हैं। वो ताल्लुकात जो ईमान के बगैर होते हैं रूह को कमजोर कर देते हैं, और वो रास्ते जो इब्तदा में खूबसूरत लगते हैं आखिर में दर्द दे जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि
तुम्हारा बदन रूहुल कुदूस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। जिस तरह पुराने अहद की हैकल में पाक तरीन मकाम था जहाँ खुदा की पाक हजूरी हर वक्त रहती थी, वैसे ही हम ईमानदारों के बदन हैं जहाँ खुदा का पाक रूह रहता है। और जैसे पुराने अहद के मकदस की तकदीस का हर मुमकिन ख्याल रखा जाता था, उसी तरह तुम्हारे बदन पाक हो क्योंकि तुम्हारा बाप पाक है और उसका रूह तुम में बसा हुआ है। और रही बात उन गैर अक़वाम की, तो उन जैसों के लिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जो अपने मजहबी अहकाम की तकमील की आड़ में शहवत परस्ती को फरोग देकर इब्लीस की गुलामी कर रहे हैं, वो नहीं जानते ना हकीकी खुदा को और ना ही उसके कलाम अक़दस को। मगर आप तो जानते हैं, बल्कि आप तो उसे बाप कहते हैं। इसलिए ऐ खुदा की बेटियों, याद रखो कि हर वो आवाज जो आपको खुदा से दूर ले जाए वो मोहब्बत नहीं, वो फरेब है। और हर वो रिश्ता जिसमें खुदा शामिल ना हो वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंसान इस जाल में फंसता कैसे है? क्यों एक समझदार इंसान, एक ईमानदार दिल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं चाहता? इसका जवाब बहुत सादा है। शैतान कभी सीधा हमला नहीं करता, वो दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आता, वो जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता दिल के दरवाजे पे दस्तक देता है। वो आवाज देता है बहुत मासूम अंदाज में, बहुत नर्म, जैसे सिर्फ बात कर लो, इसमें क्या बुराई है, सिर्फ दोस्त ही तो हैं, कुछ नहीं होगा, तुम तो समझदार हो, सब करते हैं, सब ठीक है। और इंसान इन छोटी छोटी बातों को सुनकर अपने आप को मुतमईन कर लेता है। पहले सिर्फ बात होती है, फिर आदत बन जाती है, फिर दिल जुड़ जाता है और फिर इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो कहाँ पहुंच चुका है। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी गलती एक छोटे जवाब से शुरू होती है, हर तबाहकुन अंजाम एक मामूली फैसले का नतीजा होता है और हर गुनाह पहले दिल में जगह बनाता है, फिर जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। इसीलिए खतरे को पहचानना बहुत जरूरी है। खतरा हमेशा बुराई की शक्ल में नहीं आता, कभी वो अच्छाई के भेस में भी आता है, कभी वो मोहब्बत लगता है, कभी दोस्ती लगती है, कभी आजादी महसूस होती है। लेकिन अगर उसमें खुदा शामिल नहीं तो वो रास्ता महफूज नहीं। याद रखें, जो चीज शुरू में छोटी लगती है वही आखिर में सबसे बड़ी बन जाती है। इसीलिए हिफाजत हमेशा आगाज में होती है, ना कि अंजाम पर। आज ये कहानी हर ईमानदार घराने की बहन बेटी से मुखातिब है। ये आपके दिलों की खामोशी में गूंज रही है, आपके हर फैसले, हर कदम, हर ख्वाहिश को छू रही है। अगर आप अपनी हदूद से बाहर निकलेंगी तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आपको बदल देगी, आपके दिल की पाकीज़गी को धुंधला देगी। अगर आपने खुदा को छोड़ दिया तो दुनिया कभी आपको संभाल नहीं पाएगी, आपको वो मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी जो सिर्फ खुदा दे सकता है। इसलिए ऐ मसीही कौम की बेटियों, याद रखो कि तुम कीमती हो, तुम खास हो, तुम खुदा की अमानत हो, क्योंकि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। ये गुलामी नहीं, ये खुदा से रिश्ता है, ये तुम्हारी हिफाजत है, ये तुम्हारा वकार है और ये तुम्हारा सरमाया है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर भी करें। शायद आज कोई दीना ये सुन ले, कोई मारिया शहबाज ये सुन ले, कोई बेटी, कोई बहन ये सुन ले और कल के आने वाले दर्द और तबाही से बच जाए। रब्बुल आलमीन तमाम बहन बेटियों को अपने नाम के मुहक्कम किला में जिनसी दरिंदों से महफूज रखे। जिंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। मसीह खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। आमीन।